Hello and good morning to everyone. In today's lecture, we are going to talk about what is contract and how we are going to understand it. Fine. आपके पास बहुत सारी बेसिक चीजें होंगी. पहली चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होने जरूरी है. वो कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ कंसिडरेशन होना जरूरी है. कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज एक्सचेंज में ले रहे हैं, चाहे आप वहां पे किसी चीज को प्रोडक्ट को दे रहे हैं, किसी सर्विस को दे रहे हैं, किसी मनी को दे रहे हैं, वो सब चीजें आपके कंसिडरेशन में इंक्लूड की जाती है. वहीं पे यहाँ आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से उसे हैंडल करेंगे. किसे? आपके कंसेंट को. यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपका कंसेंट कैसे आएगा. और उसके बाद में हमने कुछ छोटी छोटी चीजें और देखनी होती है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए. वो किसी भी इलीगल चीज के लिए नहीं होगा और वो किसी भी तरह से आपके पास में कोई भी रॉन्ग डिसीजन, कोई पब्लिक अपोज पॉलिसी कुछ हो, उस तरीके चीजों में नहीं जाएगा. यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए और आपका कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए. तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, आप जानते हैं इसके बारे में. पर आज जिस टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा आपका फ्री कंसेंट. हम बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट की. सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी अबाउट समथिंग बेसिक अबाउट फ्री कंसेंट. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? Please, you raise your hand. Why is it important? Okay, Akash. Ma'am, free consent is important because to enter into a contract, like the minds must match. Like people must have a unique subject. Like they need to agree upon the same thing because that's why consent is important. Yes, that's why consent is important. Any other views? Anyone else wants to add on something to this answer? The contract should be legal, so the other party should also have free consent, and not the contract should not be forced upon them. Contract should not be forced upon them. Yes, Gaurav. Gaurav, you need to unmute yourself. Yes. Ma'am, free consent is important because so that both parties can understand the term and conditions of the contract in the same sense. Yes. Okay. So Akash, Gaurav and Pranjali, you are all right that contract should be free consent because they need to understand the contract in the same sense. But there is something that you need to understand. Free consent is the word which is important is free. Consent, you all are right that consent should be on the same thing in the same sense, right? And the thing what we are going to study here is free consent. Why is free consent important? The thing was it should not be forced on someone. ठीक है? So this was right. आपका जो consent है वो किसी पे forced नहीं होना चाहिए. आपका जो contract है वो वहाँ पे forced contract नहीं होगा. वहाँ पे आप जो भी contract कर रहे हैं वो contract होगा आपके mutual consent से, mutual agreement से. Okay. सो वो चीजें आपके पास में रहेगी और वहां पे आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आपने कंसेंट दिया है. इन चीजों के बारे में अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो आप पे फोर्स कैसे आ रहा है, दैट हाउ द टर्म्स आर देयर. आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपको लैंग्वेज आपको पता है. एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या वहां पे हो रहा है, किस तरीके से हमें समझना है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम उसे लिखने जाते हैं. करेक्ट? दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट वी आर ऑल फेसिंग कि आप कैसे उसे लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे उस चीज को हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. साथ में हम आपके जो 4-5 पॉइंट्स हैं फ्री कंसेंट के उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे. फाइन. So let's see the notes that we are having. Okay, so you can explain me what do you mean by caution? Ma'am, caution means compelling a person to enter into a contract under pressure or threat. Under pressure or threat. Okay. Then Akash, you were saying something? Yes. To threatening. Ma'am, coercion means it's like a physical pressure on a person, ma'am. Sorry, physical pressure on a person. Okay. When a person commits or threatens to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code, it's known as coercion. Ma'am, to threatening somebody. To threaten somebody. Okay. So we have few words. You said you gave out a few words that this Indian Penal Code is there. There is threatening and there is physical pressure on the person. Right. Then what is undue influence? Ma'am, undue influence means like misrepresenting something. Misrepresenting something. Then what is misrepresentation? One party influenced
other party by their act or conduct. Act or conduct. Okay. What are the other words for undue influence? Yes, Pranjali. Undue influence is when a party is in position to Yes, yes. influence the decision of the other party. For example, a CA and an article. There is a fiduciary relationship between the parties. And there is a fiduciary relationship between the parties. Okay. Undue influence means a false representation of fact made willfully with a view to deceive the other party. Willfully. Then what is fraud? Okay, okay. Let's conclude this. Now you should know that what are the words that you used. आप लोगों ने जो बोला, आप लोगों में अगर वो हम mentally सोचे कि किस तरह से आप लोग बात करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि किसी भी तरीके का कोई प्रेशर अगर किसी के ऊपर है, हम उसे कहेंगे कि उसका कंसेंट फ्री नहीं है. ओके, बट आपके पास प्रॉब्लम कहाँ पे आई? आपने जब क्वेश्चन की बात की, आपने कहा एनी प्रेशर. सो प्रेशर कैन बी ऑन माइंड, or pressure can be to take a decision. The decision can be forced, or pressure can be something जहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है, या फिर आप पे कोई फिजिकल प्रेशर किया जा रहा है, किसी को किडनैप कर लिया गया है, कोई धमकी दी गई है, राइट? तो इस तरह से काफी सारे तरह के प्रेशर्स हमारे पास हो सकते हैं. फिर आपने कहा willful. Willful is a word which we use for fraud. Okay, so you should take care of few words. आपको कुछ words का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए बहुत important होते हैं. अगर हम caution की बात करते हैं, वहां पे आपके लिए important word होता है physical pressure. आप पे किसी तरह का IPC के अंदर जो forbidden है. For example, यहाँ पे आपके पास में किसी तरह का pressure हो सकता है, जैसे कि आप kidnapping का केस हो सकता है, आपको threaten किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आप पे किसी तरह के मर्डर के चार्जेस लगा रहे हैं, मर्डर का केस हो रहा है. ओके, वी विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर आई कंप्लीट सेइंग. सो उसमें आपके मर्डर के चार्जेस हो सकते हैं. थर्ड, आपके पास में हो सकता है कि किसी तरह का ऐसा इशू हो जहां पे आपके फिजिकली उस पे आपके आ रहा है, सुसाइड का केस हो सकता है. तो इस तरह से आप मेंटली उन्हें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो कि आपकी आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल. सो अगर ऐसा कोई केस है तो हम उसे कॉशन में लेके जाते हैं. यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कुछ वर्ड्स का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं वो आप पे फिजिकली इम्पैक्ट कर रही है. वहीं अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, वो चीज आपके मेंटल इम्पैक्ट पे जाती है. वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी कोई ऐसा रिलेशन जो आपके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट कर सकता है. फाइन. सो व्हाट वी नीड टू सी हियर, हमारे पास में दो वर्ड्स आ गए, कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमें देखना होता है कि आपके माइंड पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट वर्ड इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप. फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वहां पे जो पर्सन आपको डिसीजन के लिए इंड्यूस कर रहा है, जो ये कह रहा है कि आपको डिसीजन लेना ही होगा, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप ये डिसीजन कैसे लेंगे, इन चीजों को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखते हैं. कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क करने के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी कॉशन के अंदर, कि आपको ये देखना है कि आपकी फिजिकल इम्पैक्ट नहीं आ रहा किसी भी ऐसी चीज के ऊपर कि आईपीसी के अंदर अगर वो फॉरबिडन है तो आप उस चीज को नहीं कंसीडर कर रहे हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस में होगा कि वो आपके माइंड पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, कोई रिलेशनशिप ऐसी नहीं है जो आपके सोचने के तरीके को चेंज करना चाहती है. फाइन. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ये चीज पकड़नी है कि आप कौन सी चीज से इम्पैक्ट हो रहे हैं. अगर आप इस चीज को पकड़ पाते हैं तो ही आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे. ओके, देन वी हैव फ्रॉड. फ्रॉड के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप ही लोगों ने हमें बताया था, दैट वाज विलफुल. अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आपके वहां पे विल नहीं है, आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, तो वो चीज फ्रॉड में इंक्लूड नहीं होगी और किसी भी तरीके से फ्रॉड के ऑप्शंस वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. फाइन. ओके, सो वी आर मूविंग टू द फोर्थ वर्ड, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर हमने अभी आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, आपने कहा कि अगर कोई फैक्ट मिसरिप्रेजेंट होता है तो हम उसे लेके जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एक बेसिक डिफरेंस रहेगा आपके पास में. अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एक बेसिक डिफरेंस रहेगा आपके पास में. क्या होगा वो डिफरेंस? मिस्टेक आपका जो होता है, जो फैक्ट है वो गलत नहीं होता अनड्यू इन्फ्लुएंस में. अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको सारे फैक्ट्स पता होते हैं. फाइन. आपको फैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. मिसरिप्रेजेंटेशन में जो फैक्ट्स आपको पता है वो फैक्ट्स में प्रॉब्लम.
ओके ये डिफरेंस है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन में. अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो बात कही है वो बात आपके पास में रहेगी, एंड आप जो बात यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं वो चीज आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएगी. फाइन. सो आपके पास में कुछ बेसिक चीजें रह गई. एक अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आपने केवल माइंड को इम्पैक्ट किया है. फैक्ट्स आपको सब पता है, फैक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद में आप पे किसी तरह का प्रेशर है, आप पे किसी तरह का फोर्स है जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया है. आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है. मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको गलत बताया गया, बट इंटेंशनली नहीं. फैक्ट आपको गलत बताया गया, दैट इज फाइन. अगर वो इंटेंशनली या विलफुली गलत बताया गया है तो वो आता है फ्रॉड में. ओके, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ही छोटा सा फर्क आएगा. व्हाई? फ्रॉड में भी फैक्ट गलत है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी फैक्ट गलत है, मिस्टेक में भी फैक्ट गलत है. फ्रॉड में विलफुली उसने बताया है, उसे पता है कि वो गलत है, फिर भी उसने गलत बताया है क्योंकि उसका इंटेंशन था आपको नुकसान पहुंचाने का. मिसरिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट इज आपने गलत फैक्ट बताया है, दैट इज फाइन, बट आपके पास में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जिसने आपको फैक्ट बताया उसे भी नहीं पता था कि वो फैक्ट गलत है. ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिए. विलफुल फ्रॉड, नॉट विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन. फैक्ट इज रॉन्ग इन बोथ द केसेस. फाइन. मिस्टेक में भी फैक्ट गलत है. फैक्ट कहाँ गलत है? मिस्टेक में गलती से बताया गया है. मिस्टेक में हमें नहीं पता है, चाहे आप मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें कि हम लॉ गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, या फिर आप फैक्ट की बात करें कि हम फैक्ट को गलत तरीके से समझ रहे हैं. फाइन. तो इस तरीके से आपके पास में दो तीन चीजें रहेंगी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे लेके चलें. नाउ यस, who was saying? Aman Kumar, you raised the hand. So yes, Aman, what you wanted to say? Ma'am, mistake I am not able to understand actually. Yeah, we are coming back to these things. आप मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे. अभी हम कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे जिसके आपको आंसर्स देने होंगे, तब हम इसको वापस से पूरा लेंगे. अभी हमने सिर्फ आपको वो वर्ड्स बताए हैं जो आपको इस बात को इम्पैक्ट करने में, इस बात को समझने में हेल्प करेंगे कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज के लिए. तो हमारे पास में कुछ फैक्टर्स आते हैं. अगर हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की, फाइन, तो फ्री कंसेंट की हम अगर बात करते हैं, पहला वर्ड आता है कॉशन. कॉशन के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड अपने पास में इंपॉर्टेंट रहता है. आपके ऊपर किसी भी तरह का फिजिकल थ्रेट आएगा, किडनैपिंग हो सकता है, सुसाइड हो सकता है, आपका मर्डर का केस हो सकता है, और हो सकता है आपको थ्रेट मिले, हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो. कमिट, थ्रेटन टू कमिट, और इस कमिटिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में कहीं पे भी अगर वो आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है तो वो चीज आपके आती है किसमें? कॉशन में. अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर रहता है. आप पे किसी रिलेशनशिप को यूज करते हुए आपको कहा गया है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ेगा. ओके, देन फ्रॉड में इंपॉर्टेंट वर्ड इज willful misconduct is an important word. Then misrepresentation में important word is, वहां पे willful नहीं होता है, it is a mistake on the behalf of the person. Okay, then mistake में आपके पास में आता है, दो तरह की mistake होती है, mistake of law and mistake of fact. When we are talking about mistake of law, we are talking about कि आपको पता नहीं है कि law क्या कहता है. When we are talking about mistake of fact, we are saying that fact that you stated in the particular concern is wrong. Fine. तो हम कुछ तरीके से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपके पास में क्या एग्जाम्पल आते हैं जब हम बात करेंगे फ्रॉड की या कॉशन की. अगर हम यहाँ पे कॉशन की बात करते हैं तो हमने कहा आपके पास आईपीसी में कुछ चीजें डिसाइडेड है, कुछ चीजों को बैन किया गया है. वहां पे आपके एग्जाम्पल में इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर आप सुसाइड का थ्रेट करते हैं तो भी यहाँ पे रहता है, और अगर आप किसी भी तरीके से उन्हें ये कहते हैं कि सर यहाँ पे हमें आपको आपको एक फोन आता है कि सर हम आपके फैमिली मेंबर को किडनैप कर लेंगे, सो इज इट अ केस ऑफ कॉशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि दो लोग हैं, दो लोग वहां पे किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर करना है, बट वहां पे क्या हुआ कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं था. आपके पास में कॉल आया कि सर हमने आपकी फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया है, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे तो हम उन्हें मार देंगे. So whether it is caution or not, it is not on you. It is not on any of the party of the contract. So is it considered in caution or not? Yes. Yes, Regina, you raised your hand. Yes, it is under caution. Yes, it is under caution. Yes. And anyone else? Two answers are for yes. Anyone else for this answer?
Yes, ma'am. Caution. Caution. Okay. So most of you are Yes, saying ma'am. yes. Anyone else is there who want to answer? Ma'am, it is caution. Okay. Yes, Pranjali is also in favor of caution. Why? आपके जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट थी उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उनको किडनैप भी नहीं किया, उन पे कोई प्रेशर भी नहीं है, तो फिर why? There is a physical pressure created since the family member has been kidnapped. Family member has been kidnapped. So is it not important that only the parties to the contract should have impact of caution? No, ma'am. Yes, that is the point that you should mention. Why? What is the major thing that you need to mention in the question is that a person, whether the person is connected to the parties to the contract. It is not essential that parties to the contract are the one on which the impact is there. Mental, physical जो भी आपका impact है वो parties to the contract को नहीं हो तो भी उनके family members को हो, उनके किसी close person को हो तो भी उसे माना जाता है कि वो caution के अंदर आ रहा है. और यहाँ पे आपके contract को कैसे treat किया जाएगा? How will be the contract treated? Voidable. Void? ma'am. Voidable? Voidable. So how many of you are agreeing with voidable? Voidable. 1, 2, 3, 4. Rajina, 5. Voidable. Kashish. Voidable. Voidable. Okay, Aman. So Voidable. none On the of you are basis with of void. No, ma'am. It cannot be void. No. the basis of Void. I'm voidable. So now you are confused whether it is void or voidable. No, voidable. It's a confirmed. voidable. Okay. So the contract should be voidable because अगर उनको लगता है कि contract favor में है तो भी आपका वो contract voidable होता है, तब आप उसको accept कर सकते हैं. अगर आपको लगता है वो favor में नहीं है तो आप उस चीज को reject कर सकते हैं और उस तरह से उसको resolve करेंगे. ये देखिए effects of caution, वो contract is voidable at the option of the aggrieved party. So अगर आपका caution है, undue influence है, वहां पे आपके पास में voidable position आती है. Now yes, Galaxy A30, you want to say something? I'm like, while coercion, other party's agent or other party can do like other party agent also can involve in coercion, ma'am. Yeah, no issues. Coercion can be from any of them, third party, agent, the person, anyone. बस जो आपका decision है, the decision which is there for the contract should be based upon that fact. अगर आपका डिसीजन उसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो वहां पे उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. अगर आपका डिसीजन वहां पे इन्फ्लुएंस होता है तो ही हम मानेंगे कि वो वहां पे इम्पैक्ट किया है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा. ओके, देन वी हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने आपसे बात कही है कि आपका पोजीशन टू डोमिनेट होगा, यानी आपके पास में चार चीजें आती हैं. पहली चीज, आपकी अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी आपके पास में होनी चाहिए कि आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपकी रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होनी चाहिए. मेंटल डिस्ट्रेस आपके पास में हो सकता है, किसी तरह का मेंटल प्रेशर आपके पास में हो सकता है, जैसे आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप बीमार हैं, या फिर ओल्ड एज है, आपको सोचने समझने की शक्ति आप में थोड़ी कम हो गई है, तो इस तरीके से. या फिर अनकॉन्शियसबल बार्गेन. तो चार वर्ड जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको ढूंढने हैं आपके क्वेश्चन के अंदर जब आप अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, वो आता है आपके पास अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मेंटल डिस्ट्रेस या अनकॉन्शियसबल बार्गेन. यानी कि आपको इन चारों से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या वो पर्टिकुलर सिचुएशन अनड्यू इन्फ्लुएंस की है या नहीं है. फाइन. इज देयर एनी इश्यूज विद अनड्यू इन्फ्लुएंस? Ma'am, once again, can you repeat, ma'am? Yeah, hold on, please. Manjit, you are saying something. Example of fiduciary relationship. Okay, example of fiduciary relationship is something which is based on trust, like a lawyer and a client, a chartered accountant and his client. There is a relation that you will not disclose any of the facts, any of the basic information of the person, a doctor and a client, that we are disclosing all our basic things, all our secret information to these person. And there is a relation, there is an agreement that we will not disclose our patient's details, our client's details. But now you are in a position, आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि हम आपकी बेसिक चीजों को डिस्क्लोज कर देंगे, हम आपके कंपनी के प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज कर देंगे, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्क्लोज कर देंगे, अगर आपने इन पे साइन नहीं किया तो. तो यहाँ पे आपके पास में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, अगर आप उसको वॉयलेट करते हैं तो वो आता है आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप में. फाइन.
So I will put on a question now. So the question what we are going to have here is, okay, so the students, if my students are here from my class, so please do not answer that question because you know that question. Okay, so the question is, if a banker is there, okay, so if the banker is here, so that banker, okay, there is a person named Amit, he goes to a bank and asks for a loan. Okay, the market conditions are not good, they are stringent market conditions. So what is your solution? That banker says, आपको हम लोन देंगे, no issues, but हम आपको लोन देंगे डबल रेट पे, आपका जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है हम उससे डबल रेट पे आपको लोन देंगे. सो आप क्या करेंगे यहाँ पे? उन्होंने कहा कि मार्केट में ऐसी कंडीशन है, मार्केट की कंडीशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो क्या ये केस अनड्यू इन्फ्लुएंस का है या नहीं? No, ma'am. No. Okay, Damanjeet is yes, Damanjeet. No, ma'am. No. Then No, ma'am. Not undue influence. Akash is saying no. Then बिल्कुल नहीं. there is no other suggestions. No, ma'am. No, it is no other suggestion, or you are giving the answer that it is no. No, yes. It is not under undue So influence. those who are agreeing that it is not an undue influence, raise your hand. 1, 2, 3. Then Ma'am, fiduciary 3 relationship participants. ही Yeah, let's see. Okay. Yes. fiduciary relationship ही नहीं है. Fiduciary relationship नहीं है. Okay. Then. Okay, so you are correct. The answer is no, because there is no such relationship. There was an option to the person. There was an option to the participant that he can go and inquire with other people. He can go and inquire with other banks, so that what is the current rate? He can go and inquire with that. There is no such unconscionable bargain. There is no mental distress, and there is no fiduciary relationship between the person. There is none of the point available here. So हम इसे कहते हैं कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे नहीं है. That is not an undue influence. Fine. बट अगर हम यही बात कहें कि एक विलेज में, एक छोटे से गांव में एक आदमी गया था, वहां पे उसके पास में एक जमींदार के पास में वो लोन लेने गया था, और वहां उस वक्त जब वो लोन लेने गया तब उन्होंने एक नए कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एंटर कर दिया, राइट. उसके पास में ऑलरेडी काफी सारा लोन था. अब वो वहां पे गया, किसी काम से गया, क्यों गया वो हमें पता नहीं है, बट वहां जाके उन्होंने एक नया लोन का एग्रीमेंट एंटर कर दिया. सो इज इट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes. No, ma'am. No. Okay, so now we have two opinions. Now it would be a good discussion. So who agree with yes and who agree with no? So first, who agree with yes? Pranjali is yes. Then Akash is yes. Then so we have 5 votes for yes, and then for no. Yes, ma'am. Bhutesh. No. Yes, ma'am. Yes. There are no votes for no. Yes. Okay. Bhutesh is saying for yes. Then for no, there is no votes for no. It is not an undue influence. No, ma'am. No, ma'am. Oh, no, ma'am. Okay. Fine. Okay. Now I will give you one more situation in the same thing. If we have one more viewpoint, that the person who went to that zamindar for loan was actually in need of money. He went there to get the loan. So how will it be an undue influence situation? Why can't he take another loan from the same person जहाँ पे उसके पास में already बहुत सारा लोन था, उन्हीं से नया लोन क्यों नहीं ले सकते? Why can it not be an undue influence and a valid agreement? Ma'am, it's not compulsory to take loan from the same person. You can take from outsiders also, other person. No, I told it is a small village and you are going to a zamindar, which and that is a situation in a village. You need to consider that too. Ma'am, you can go to bank also or any other. Yeah, yes, but Yes, you yes. said in the question when I said first, you said that yes, it is an undue influence. No, ma'am, I said this is not an undue influence. Okay, okay. So in this situation, आपके पास में क्या option रहेगा? How you have to answer this question is, you are not clear about the position of that person, right? You are not clear whether that person is in need of money or not. So the burden of proof that whether the particular thing is an influencing thing or not, ये चीजें आपको depend करेगा. They need to prove it. It is a burden of proof is on the person who is taking the loan. If he can prove that it is undue influence, then you will go with the provisions. And if it is not proved that this is an undue influence, then you will consider it as a valid contract. Fine.
Now, Yes, what sir. will you do if it is proved that it is undue influence? What will Ma'am, you we do can if it is proved? ma'am, we can avoid the contract with him. You can avoid the contract. Voidable is the word. You can avoid the contract, that is fine. But what you need to write? You need to Contract is write voidable that. at the Yes, you need to write that contract is voidable at the option of aggrieved party. ये word अगर आप वहाँ नहीं लिखेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा. You need to write that contract is voidable at the option of aggrieved party. Fine. तो इस तरह से आपको इसको आंसर करना है. आप उसे voidable बताएंगे. उसके बाद में आपको वो तीनों पॉइंट लिखने हैं जो आपने कहे. आप इसको रिस्टाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकते हैं. ये तीनों पॉइंट आएंगे आपके इफेक्ट के ऊपर. Ma'am, you said that when there is undue influence, aggrieved party can sue for specific performance and damages, or damages. It can sue for both, ma'am. Like no, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप तब sue कर सकते हो जब आपको उसको वैलिड करना है. When you are continuing with the contract, you can sue for specific performance. कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए. अगर आप ये कर रहे हो कि नहीं हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो आप उसे रिस्टाइन कर दीजिए. और आप अगर डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं तो आप डैमेजेस क्लेम. फिर फ्रॉड के बारे में हमने बात की. फ्रॉड जो होता है वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है. आपकी इंटेंशन थी कि आप वहां पे उस चीज को फ्रॉड की तरह लेके जाएंगे, ये आपका इंटेंशन है. यहाँ पे विलफुल है, आप उसे जानबूझ के गलत बात बता रहे हैं, आपने अपनी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करी है. तो इस तरीके से वहां पे फ्रॉड में आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा कि वो जो भी आपने यहाँ पे किया वो बिल्कुल था. आपके जो पॉइंट थे वो आपका इंटेंशन था कि आप उसे गलत चीज बता रहे हैं. अगर उसने उस पर रिलाई किया है तो अगेन आपके पास में रेमेडी आती है. आप उसे रिस्टाइन कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, या फिर इंसिस्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी काम है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज आप कंप्लीट कर रहे हैं. फाइन. सो दिस वाज व्हाट देयर इन द फ्रॉड. फ्रॉड में आपके पास में ये चीज आई थी. फिर आता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नॉट एन इंटेंट टू डिसीव, विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव. ओके. एंड देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ मिस्टेक. मिस्टेक के अंदर हमारे पास दो चीजें आई थी आपके पास कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है. इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, उसे वॉइड नहीं माना जाएगा. मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, चाहे वो बायलैटरल मिस्टेक हो चाहे वो यूनिलैटरल मिस्टेक हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो हमारे पास में एक समरी बन के आती है आपके पूरे फ्री कंसेंट की कि कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है. यानी जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑप्शन रखती है कि आप इसे वॉइड करना चाहते हैं या आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. वेयर एज मिस्टेक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है. वहां पे आपका शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं. आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कैसे उसे डील करना है. ओके. So this was the concept that we are having here in today's demo lecture. Now we will take up your doubts. Yes, Bhutesh, you want to say something? Ma'am, in mistake of fact, there is an example. A offer to sell his ambassador card to B, who believes that. Sorry. Ma'am, there is an example on page number 150. Yes. Of book. Just read it. A offers to sell his ambassador card to B, who believes that A has only the Fiat car, agrees to buy the car. Here two parties are thinking about different subject of matter, so that there is no real consent and the agreement is void or valid. So agreement, there is a mistake of fact, right? Yes, ma'am. So if there is a mistake of fact, what is the remedy that we are having? Ma'am, that's my question. Yes, for the mistake of fact, the agreement is void. अगर आप एक ही चीज पे कंसेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आप दोनों ने एक ही चीज को सोच के उस काम को नहीं किया है, तो आप उस चीज पे एग्री नहीं करेंगे. और अगर आप उसे एग्री नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आपका मिस्टेक होगा और उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वॉइडेबल होता और हम कहते हैं कि एक पार्टी की बिल पे ये एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो जो परचेजर है उसे तो फिएट गाड़ी खरीदनी है, जबकि जो सेलर है वो कहता है कि मुझे इसे बेचना ही नहीं है. तो आप कौन सी की बिल, किसकी बिल करेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि हम जानबूझ के उस गाड़ी को खरीद लेंगे भले ही आपको बेचना हो या ना बेचना हो. करेक्ट. सो इसीलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया है क्योंकि वहां पे म्यूचुअल कंसेंट ही नहीं है. फाइन. तो इस तरीके से हमने इसको समझना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम उसे वॉइड क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वहां म्यूचुअल कंसेंट ही नहीं होता है. Okay, so next, any other questions that you are having? We will take these questions and we will summarize this
particular session. Yes, Soumya. Mere silence is not fraud. How to present this answer, ma'am? Mere silence is not fraud. Okay, अगर आपके पास में ये statement आता है that mere silence is not fraud, explain. Then Yes. you need to give a statement where it says that yes, mere silence is not fraud, but there are exceptions. So अगर वो आपको explain करने के लिए कह रहे हैं, आपको exceptions देने होंगे, you need to give the exceptions to the point. Same चीज आपकी और factors में भी applicable होती है, जहाँ पे भी वो आपको कोई provision explain करने को कह रहे हैं, then you need to give the exceptions as well as you need to tell them that this is the concept and these are the exceptions to the concept. A mistake of law is a valid contract or void contract. Sorry, mistake of law is based on two factors. Mistake of law, there are 2 points, that there can be mistake of Indian law as well as there can be a mistake of foreign law. Okay, if it is a mistake of Indian law, then you are at fault because you are a resident of India and you should know what the law is. So आप उस चीज को मना नहीं कर सकते हैं, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, आपके पास में डैमेजेस आ सकते हैं, पेनल्टी आ सकते हैं, वो प्रोविजंस आपके अलग रहेंगे, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. वेयरएज अगर हम मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ की बात करते हैं कि आपको किसी बाहर दूसरी कंट्री का लॉ नहीं पता है, तो दैट इज एक्सक्यूजेबल एंड दैट कैन बी ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो मिस्टेक ऑफ लॉ में आपके पास में 2 पॉइंट्स आते हैं, इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ. फाइन. Can you please explain me what is extortion? Because that time I can't listen. Okay, caution is something which is of physical IPC Indian penal code में जो लॉ जो चीजें फॉरबिडन है उसके लिए अगर आप कोई ऐसा इम्पैक्ट लेके जाते हैं जिससे आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ है या आपने कंडक्ट किया है, तो उन चीजों को हम कॉशन में रखते हैं और उन चीजों को हम लेके जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. यस गौरव. मैम मीनिंग ऑफ अनकॉन्शियबल बार्गेन. अनकॉन्शियबल बार्गेन मतलब आपने बिना सोचे समझे कोई ट्रांजैक्शन किया है जहाँ पे आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपने काम करना है. अगर फॉर एग्जांपल बहुत इल है, अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के बहुत तेज बुखार है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है, तो वहां पे अगर वो कोई डिसीजन लेता है दैट आई नीड टू सेल आउट द प्रॉपर्टी, सो इज दैट डिसीजन प्रॉपर? हो सकता है जब वो ठीक हो जाता है और वो वापस घर जाता है बोलेगा नो आई डोंट वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी. So this is a bargaining condition जहाँ पे वो अपना माइंड प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा है, दैट इज अनकॉन्शियबल बार्गेनिंग. वो सोचा समझा डिसीजन नहीं. फॉर एग्जांपल ड्रंकार्ड, अगर कोई पर्सन है जो जिसको बहुत पीने की आदत है, वो ड्रंक पोजीशन में है, तो वो वहाँ पे डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाए, वो सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो प्रेशर में डिसीजन ले रहा है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. It means ma'am unconscionable bargain is equal to unsound mind. No, not unsound mind. अनसाउंड माइंड इज अ डिफरेंट थिंग. अनकॉन्शियबल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रंकार्ड अब पी के जब उस टाइम उस पोजीशन में है, मैं इतना कहना चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो बहुत डेली बेसिस पे पी रहे हैं, अब अगर उनको इसकी लत लगी हुई है, उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो वो क्यों नहीं पैसे लेंगे? अगर आप 2% पे 4% पे उनको इंटरेस्ट रेट पे पैसा दोगे तो वो ले लेंगे, बिकॉज उसकी वो आदत है. तो इस तरह से वो सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं है. वो जो बार्गेन कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर बार्गेन कर रहे हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो अंडर प्रेशर डिसीजन ले रहे हैं. ओके, यस ट्रांसफर. Excuse me, ma'am. Yes, Dave. May I ask about out of syllabus? I think not this. What is this question related to? Ma'am, case study based. Yes, okay. Case study based question we can take up. Yes. हाँ, तो मैम केस स्टडी नहीं, क्या कभी कभी कैसी आती है, सिर्फ प्रोविजंस पूछा रहता है, तो पूरा केस स्टडी नहीं लिखनी होती है, बस प्रोविजन बताना होता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चंस को? ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. अगर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपको जनरली 3 पैराग्राफ्स में उसको आंसर करना है. पहले वाले में आपको प्रोविजन लिखना है और उसके बाद में आप उसके केस के बारे में बताते हैं और फिर उसका आप कंक्लूजन देते हैं. केस स्टडी बेस्ड मोस्टली इसी तरीके से आता है. आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क एरर. आर यू देयर देव? यस मैम, यस आई एम देयर. Yes, okay. बट मतलब सजेस्टेड आंसर में देखा है कि सिर्फ उसने प्रोविजंस ही लिखा है. सो सजेस्टेड में ओके सो माइट बी कि आपको सजेस्टेड में पूरा आंसर कंप्लीट नहीं दिया गया हो सकता है कुछ एडिटिंग एरर हो, बट अगर आपके पास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोविजन के साथ में उसका कंक्लूजन भी दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है. आप अगर वो लिख के आते हैं आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. ओके मैम, थैंक यू मैम, बस वही पूछना था. ओके, यस Ma'am, like in a case study questions, like when will you write the exceptions of a case? Sorry, exceptions? Ma'am, like when a case study question is asked in the exam, like we are required to write those exceptions, like particular exceptions of that case.
you need to write the provision which is asked in the particular thing. Okay, आपके जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से बेस आप प्रोविजन दीजिए. वहां पे अगर आपको साइलेंस इज नियर फ्रॉड का जैसे सौम्या ने क्वेश्चन पूछा था, अगर उसको एक्सप्लेन करने की बात की गई है तो आप एक्सेप्शन देंगे. अगर आपको केस स्टडी दिया गया है तो उसने कोई एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बनाया होगा, तो आपको उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करना है जिसपे क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस कंक्लूड टुडेज मीटिंग. हम आज की मीटिंग को कंक्लूड कर रहे हैं. तो अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यू हैव द फोन नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन देम एंड यू कैन register for this course. Yes, Anushri ma'am is with us again, so let's hand over the session to Anushri ma'am. Okay, I hope that you had a very interesting learning and मजेदार session. Every one of you are interacting very much with ma'am. आपके जो भी doubts थे, confusion थे, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि मैम हमें directly मैम से बात करनी है, तो आपको आज एक चांस मिला था. So if any one of you, like most of you are like have joined other live classes, जिन्होंने join कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है. अगर कोई और join करना चाहते हैं live classes, तो आप जो हमारे नंबर है उस पर contact कर सकते हैं. इसके लिए I guess सबको नंबर मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ. आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकें और ये जो फेस टू फेस जो क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल पाए. नंबर इज 9079991347. In case you don't know, and we hope you had a great session. We'll be continuously providing you few classes like that. Lots of wishes and blessings to all of you. Thank you.